very big fat wedding which India saw of India's richest personality, Mukesh Ambani's son. Was it a PR stunt? No, not at all PR stunt. The kind of friends they have, it has to be that way. बात तो इंडिया की हुई ना. आपने जब स्टार्ट किया था then what was your parents' reaction? फादर बोले आ બધું શું છે तो ये क्यों करना है आपको. 3 जगह पे मैं जॉब करता था. तीनों जगह के सैलरी मिलके पूरे साल में टेक होम वाज 1,35,000 a year. A year. और एक इवेंट हुआ. In that event I earned 1.65 lakhs. What was the best destination wedding which you planned? There was a wedding at a temple. We had to change the entire Dharamsala rooms into a 2-star, 3-star kind of hotel and putting up air conditions on each and every room, customized toiletries, even the lockers. So he changed everything just for a single wedding. To take care of 691 guests, we were 570. How much? 570. 570 people. Yes. Why are the destination weddings increasing in India or is just the hype? नहीं, स्पेंडिंग पावर बढ़ गया. दूल्हा होता है, दुल्हन होती है, या तो पेरेंट्स जो होते हैं उनको तो सेलिब्रेट करना ही है कोई भी लेवल पे. एंड यू सेलिब्रेट इट विद द कोजी पीपल नियर यू एंड नॉट फ्लॉन्टिंग इट विद द थाउजेंड्स ऑफ पीपल यू कॉल फॉर अ रिसेप्शन और बिग टाइम शादी यार. Did pandemic affect the whole event industry? उफ. Hello and welcome to the show, Rajesh sir. How have you been? I've been great, yeah. Thanks for calling me, man. And it's a very first time that we are going in the vertical of events, right? And you've been pioneering from Gujarat that you started from cultural nights and now you're into event. You started what event is. So what was that moment when you thought that let's jump in the vertical of event and start something? Well, Dhruvish, I used to work with 3 different places. Okay. So, one place is I used to manage seminars and conferences. Another place where I was working, which was my own college, it's HL College Alumni Association. I used to do fun fairs and Navratris, Garba you say, Dandiya, popularly known in our Gujarat. There were 2 things already going on. And the third thing, I was a dance teacher. Okay. I knew the front end part of the event. I knew the back end part of the event, a small event or a big event, and a corporate event kind of seminars and conferences. I used to keep doing this 3 things with 3 different jobs. And one fine day, we thought, I was sitting and saying, ye apna kuch hoye, and then we pitch in big fish in from Bombay and Delhi who come here in Gujarat and do their events. Events to काफी होते नहीं थे, but वो concerts वगैरह होते थे. श्यामक दावा लाइव इन कॉन्सर्ट, उदित नारायण कॉन्सर्ट, उस जमाने में कॉन्सर्ट्स होते थे क्लब्स में. Correct. तो हम क्यों नहीं कर सकते ये, दैट वाज अ थॉट. ऐसे ही वी जम्प्ड इनटू पैरेलली द फोर्थ थिंग, 3 जॉब और चौथी ये चीज. एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. वी नाउअडेज आई से वी बिकॉज वी हैव अ ह्यूज टीम नाउ, बट यस, इट वाज ऑल अलोन एट दैट टाइम. माय फादर हेल्प्ड मी अ लॉट एट दैट टाइम. Printing one visiting card with pager number and writing just the name and contact for events and the pager number, and that's it. And that's how we just jumped into it. Worked for few big fish from Bombay and Delhi. So it's called B2B nowadays. Correct. So when they come here, they come with the ideas and everything. The venue is booked and everything is done. But they want light, they want sound, they want some compare, they want some manpower. They want some generators, projectors they want. So I used to supply those things. And that's how it started in 1999. So being a first generational entrepreneur, right? आपने जब start किया था then you were not having that backbone that you should have that. वो time पे वो confidence थोड़ा plus minus होता होगा that अगर ये successful होगा या नहीं होगा. So what was the journey? What was your parents' reaction basically that you thought कि अभी मेरे को खुद का start करना है and I'll be starting off. So how did your parents react to that? Yeah, parents, father बोले आ બધું શું છે, ये क्या करना है आपको, ये क्यों करना है आपको. And I was like, we started with a dance show. मैं जहाँ पे सिखाता था उनका ही एक exclusive dance show कर दिया. And that's how we started. तो बोले आ બધું શું કરવાનું, આમાં શું મળે, what kind of money you will get and all. The best part, I tried to do it, and with all support of my mentors and torchbearers, I was able to pull it off 4 things at a time. So 3 job, and the 4th, this business started in 99. Was all 4 things on till 2002. Okay. Parents initially said no, but after seeing my first show, they said, "बेटे तू यही करना." My father said, "Or if you require some support, रात भर जागना, सेटअप चलते हैं, वो सब चल रहे हैं, तो एक विजुलाइज उनको भी हो गया, पापा को भी. जैसे आप करो.
मम्मी तो मेहनत कर, आगे बढ़, तू कर सकता है तो तू कर, was the kind of thing she had in mind. And wife was always supportive. बोले whatever you do, we are game. And if you think fit, okay, let us know, we'll be with you. So that's how it started. And it's been 25 years doing the same thing. So where was that moment when you thought that Zion Unlimited was there? When did Zion Unlimited born? I mean, वो main point कहाँ आया that you thought that let's do it on a very wider scale, as you told that मेरे को बॉम्बे दिल्ली से बड़े बड़े जो लोग आते हैं उनका इवेंट मैनेज करना है. Let's go and catch some bigger fishes, right? So what was that moment when a properly listed company started from your end? हुआ यूँ कि initially तो we had a very tough time. When we started into the 1999, again I say we, because I'm very passionate about my Correct. team. Okay, when I started in 1999, तो मैंने आई बोलना ही छोड़ दिया है. आई एकदम से आ जाता है तो आई मेरे को लगता है इट्स ऑलवेज वी, बिकॉज इट्स व्हेन यू गो टू एन इवेंट इट्स द टीम, इट्स नॉट मी और आई, इट्स द टीम. सो एक निकल ही गया आई. बट यस, एट दैट टाइम इन 1999 I was all alone, and yes, moral back support was there from the father, mother and the wife and sister at that time. चारों चीज़ चल रही थी. टफ टाइम तो ये था कि गुजरात ने पर्टिकुलरली ये 1999 थी 2000 सब चीज़ें देख ली in terms of flood, riots, bank scam, and the biggest setback was the earthquake. In 2003, when I was doing one event, I'll be very upfront in getting you the figures on that, and that was the turning point. Because 3 जगह पे जहाँ पे मैं जॉब करता था, वहाँ पे मुझे तीनों जगह का सैलरी मिलके पूरे साल में, इंक्लूडिंग अ बोनस, टेक होम वॉज 1,35,000 a year. A year. और एक इवेंट हुआ, आई कैटेगरी रिमेंबर द डेट, ऑन 2nd of April 2003, and it happened in Rajkot. In that event, I earned 1.65 lakhs in one event, one night. That triggered me. कि ये पूरे साल का 365 days का मेहनत है, वो एक दिन में, ये जो फील्ड है जो मैंने चूज़ किया था, जिसका मुझे पता नहीं था मैं कितना आगे जाऊंगा, कितना क्या काम कर लूँगा उसके पीछे, बट एक हुआ वो ट्रिगर, एंड दैट्स अ रीज़न आई रिमेंबर दैट डेट कि ये फील्ड में ज़्यादा काम करेंगे. एक के बाद एक जॉब छूटता गया, छोड़ दिया. The best part was everybody was supportive. As I told you, my mentors and my thoughts were by the people who are still supporting me. काफ़ी लोगों के बेटे बेटी की शादियाँ भी हमने करवा ली फिर तो. So that's the reason that, but that is the point I triggered on, and the date wise it was the figure wise as I told you, and that was 2nd April 2003 that triggered. Specific date when it got on a very wider spectrum, I guess. That then so it was no looking back. From that day onwards, then to we had a first person coming in as an employee there, the second person coming in and there. Then we had our office, every year there is something that had happened that had boosted the moral, that had boosted the energy. एक हौसला बनता गया कि let's take it to next level, let's take it to next level. और वो आज तक चलता आ रहा है, and hopefully with the blessing of God and elders, parents, ये और आगे जाएगा. And हौसले तो बुलंद है, तो जाना ही चाहिए. So after, you have organized many good, fabulous bespoke events and weddings specifically. So from an event planner's perspective, what do you think that why are the destination weddings increasing in India, or is just the hype which bride and groom are having? So what's the main reason behind that? सबको बाहर wedding क्यों करना है? Why they do not want it on a more simpler way जो पहले होता था old school में? Now everyone wants to go and fly to Greece and Italy or to Udaipur, that I just want to have my wedding there. So is that a mindset shift, or what's the main crux behind that? नहीं, स्पेंडिंग पावर बढ़ गया. माइंडसेट शिफ्ट तो क्या होता है कि दूल्हा होता है, दुल्हन होती है, या तो पेरेंट्स जो होते हैं उनको तो सेलिब्रेट करना ही है कोई भी लेवल पे. तो सेलिब्रेशन और बेसिक अगर आप देखो ना तो साइकोलॉजिकल इट्स 3 चीज़ें चाहिए जीवन में. आप पिता हो, माता हो, आप खुद ही, तो 3 चीज़ें चाहिए आदमी को. एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी और एक अच्छी शादी. 3 बेसिक चीज़ हो जाती है लाइफ में, तो बोले अच्छा से शादी किया अच्छे से. तो ये बेसिक चीज़
एंड स्पेंडिंग पावर बढ़ता गया, इकोनॉमी राइज होती गई और उसके कारण नई चीज़ें आती गई. वी बीइंग इवेंट मैनेजर्स कीप ऑन गिविंग यू न्यू आइडियाज़ टू द फैमिली और उसको माइक्रो लेवल पे लेके चले गए. आज सबके पास फ़ोन है तो फ़ोन लेके लोग चले जाते हैं. 3 दिन 4 दिन की शादी होती है. अगर आप डूइंग इट इन योर ओन सिटी तो होता ये है कि सुबह का खाना नहीं खाते, शाम को तो जाना ही है ना, 4 दिन नहीं जाते. तो चाचा का जो लड़का होता है वही अपने कजिन की शादी में नहीं पहुंचता. तो डेस्टिनेशन वेडिंग आप आ गए एक जगह पे, वहाँ से आपको जाना नहीं है. 48 आवर्स 72 आवर्स नॉन स्टॉप आप उधर ही हो, अब सब साथ में हो. And you celebrate it with the cozy people near you. Correct. And not flaunting it with the thousands of people, you know, you call for a reception or big time शादी. और तो एक कोजीनेस, नियरनेस और एक अच्छे से हमने हमारे बेटे बेटी की शादी की. मेरे फ्रेंड्स और परिवार के अलावा कोई नहीं चाहिए मुझे, फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए. तो ये सब रीज़न के कारण डेस्टिनेशन वेडिंग हैज़ कम इन टू द पिक्चर. द काइंड ऑफ वेन्यूज़, द काइंड ऑफ फूड दैट comes in picture by the 5-star 7-star properties. एक डेस्टिनेशन वेडिंग चला है और हम तो पुश करेंगे, हमारा तो बिजनेस है. So, I mean, where do you think best destination weddings happen in India and out of India around the globe? I mean, from an event planner's perspective, आपके end से top 5 places कौन सी है जहाँ पे you will suggest that यहाँ पे करो, it would be a fabulous experience there. Yeah, top 5 place list करना as an wedding planner is very difficult. Yeah. क्योंकि we want new place every time. We want to throw something new, want to throw something different. Destination अगर इंडिया की बात करें तो गोवा एंड उदयपुर एंड जयपुर आर द मोस्ट पॉपुलर वन. And when we talk about international wedding, we can name the countries, not exactly the property. It's the Middle East, or you maybe go to the Thailand, Bali, Vietnam. These are the places that, nearby places that people think for. And nowadays, the weddings are happening in Turkey, happening in Egypt, happening in Europe. Every time there is a new demand, there is a new supply. Correct. So ये एक लाइन ऐसी चली है कि फिर आपके कितने लोग हैं, how user friendly, the wedding friendly the properties, ये हर 2-3 साल बाद सब बदलता रहता है. नई नई चीज़ें आती रहती है, नई नई आइडियाज़ आते रहते हैं. एंड अब अगर घर पे भी एक शादी हो गई है, गोवा में हो गई, दूसरी शादी हो गई है जयपुर में हो गई, तीसरी उदयपुर में, एक फैमिली के अंदर, तो फिर चौथी शादी कहाँ पे होगी? फैमिली बड़ा है तो चौथी शादी कहाँ पे होगी? तो वो कारण से भी नई प्रॉपर्टीज आती है, नए सिटीज आते हैं, नए कंट्रीज आते हैं. And that's how it's booming. It's still on the developing phase, what I guess, that 4 जगह तो कर ली, what's the 5th place? Yes, it is. And ये तो क्या है कि डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ लाइफ, ये चलता ही रहेगा. करेक्ट. दिस विल एंड. तो ये हम बात करते हैं ना कि चांद पे जीवन शक्य है, मार्स पे जीवन शक्य है, वो वाली बात हो गई. तो ये सब शक्यताओं का खेल हो गया कि ये यहाँ पे करते हैं. एंड येस, देर आर फैमिलीज दे वांट टू एक्चुअली enjoy, celebrate, and at the same time they want to flaunt also. So in that regards, things go bigger and bigger. Correct. And why not? We being an event planner, experiential managers, why not? So what's the main thing? What does it take to plan a destination wedding, right? I mean, for example, you give them slots that आपको इतने persons को invite करने, इतने, तो इस हिसाब से I'll plan a destination or a place, or I mean, what's the main reason behind that? Very much. The thing is how you decide your this number of guests. बोलेगे 1000 लोग हैं तो 1000 लोग को मैं कैसे लेके जा रहा हूँ फिर इंटरनेशनल वेडिंग के लिए, और फिर कहाँ पे कर रहा है इज अ क्वेश्चन. द प्रॉपर्टी के पास कितने रूम्स है इज अ क्वेश्चन. इफ समवन वांट्स टू प्लान 1000 people wedding, तो यू नीड एटलीस्ट 450-500 प्लस रूम अराउंड इन इंडिया. तो फिर तो रिस्ट्रिक्शन आ गए अपने आप में कि कौन सी प्रॉपर्टी के पास इतने रूम्स है. तो द नंबर ऑफ गेस्ट कमिंग इन इज द क्रूशियल थिंग दैट डिसाइड्स द वेन्यू. एंड देन कम्स द लाइकिंग इन टर्म्स ऑफ मेरे को जो दूल्हा दुल्हन होते बोलते हैं वी वांट अ बीच वेडिंग, वी वांट अ पैलेसियल वेडिंग. पापा बोलते हैं, मामा बोलते हैं इन्हें यही करना है. Okay. मेरे बेटे में तो यही होगा. इट्स अ प्री नोशन, प्री थॉट थिंग. सालों से सोचते आ रहे हैं. वी स्टिल हैव फैमिलीज के उनके यहाँ डेकोर जिन्होंने किया है, उनकी शादी में डेकोर किया है, उनकी शादी में वीडियो फोटोग्राफी वही मेरे बेटे बेटी में. एंड देन वी हैव दोज फॉर्म्स, सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के लोग आ रहे सेम लाइन के अंदर के
when we talk about decoration and food and It's a video legacy driven, I photography. guess. Legacy Yeah, it is. driven. It is. Yeah, Event correct. management अभी तो 30-35 साल पुरानी इंडस्ट्री है, तो अभी नेक्स्ट जनरेशन है स्टार्टेड कमिंग इन, तो बाकी सब जगहों पे है. तो ये एक सेट होता है कि मेरे बेटे बेटी की शादी में, मेरे शादी में जो डेकोरेटर था वही करेगा, तो वहाँ तक की बात है. तो ये लाइकिंग और many a times a trend suggested by I guess it's a trend from Yeah, so from it's a a trend. layman's perspective. layman's perspective. It can be a trend, it Yeah. can be a liking, but wedding goes that way. एक liking हो गया, एक trend हो गया, और third is mix of both, and that's how बड़ा होता ही जा रहा है. So आपके end से what was the best luxury wedding or a destination wedding which you planned and it's in your mind, जो वो आपको 3rd April की possibly date याद थी, right? वैसी कौन सी वो date है जो आपको याद है that was one of the best wedding जो I also didn't expect that ये इतनी अच्छी execute होगी, but you finally accomplished Yeah. it. So there was a wedding which was the wedding at a temple. Okay, wedding at a temple. Yes, wedding at a temple happening for the first time. We had 691 guests to be precise, and to take care of those number of guests, we had to change the entire dharamsala rooms into a 2-star, 3-star kind of hotel, and client was ready with everything to donate down the line to the temple and to do it that way. So the preparation started before 8 months. So putting up lintel level tiles in the bathrooms, putting up air conditions on each and every rooms, changing the linens, and putting up the fresh toiletries, customized toiletries, those all things, even the lockers. So he to be changed provided. everything just for single everything. wedding. They say for the single wedding. Okay. And then it was all donated to the temple, eventually. So that was there. And to take care of the entire 3-day wedding, we need to have decorators, lights, sound, videographers, photographers, artists, valet parking, security, bouncers, many things. Because it's happening at the temple and you are doing a shadi there in the temple, तो काफ़ी सारे लोग देखने आ जाएंगे, तो you want to restrict few of the areas, obviously with the permission of the authorities. तो ये सब करने के लिए, then the caterers coming in all the way for 3 nights, 4 days, breakfast, lunch, high teas, dinners, all lavish. Why I'm telling and listing down all these things? To take care of 691 guests, the team, event managers, logistics managers, hospitality managers team, we all put together, we were 570. How much? 570. 570 people. Yes. To For take care of 691 guests. तो एक बार वैसे करते हैं, एक 570. guest का एक guest का एक गिन सकते हैं आप. हाँ. So this is what the wedding that even मुझे अगर बोला जाएगा कि आप इसको replica कर दो, इसको फिर से कर दो, तो even I don't know. So I again will have a sleepless night to 571. I mean, 570. individual people who will be managing yes. a wedding for 691 people. Yes. So we categorically remember these figures. Reason being guest list तो होता ही है, rooms तो देने ही है, तो ये रूम के अंदर ये लोग रहेंगे, ये रूम के अंदर ये रहेंगे, तो वो तो होना ही है. जब ये हुआ, इवन वी डिडंट न्यू इट, हमको लगा 200-250 तो जाएंगे. बट वंस वी स्टार्टेड डूइंग इट, नो, कि भाई caterer staff was 150 people all in all, the chef from, because every cuisine was there to serve. और दोपहर में आपका हाई टी हो रहा है, शाम को आपका डिनर हो रहा है, 3 घंटे का टाइम है, तो दोनों जगह सेटअप चलेगा. आप समझ रहे हो? हाँ, डेकोर का everything would be simultaneously. Correct. तो ये बैक टू बैक, एंड वी ऑल्सो हैड प्रोजेक्शन मैपिंग हैपनिंग ऑन द 2 diagonal side on the 2 different days. Okay. On one day it was on the left side and another was on the right side. So that team was there. So there are many people involved. तो लिस्ट बनता गया, तब पता चला कि इनके लिए अलग पैरेलली हॉस्पिटैलिटी लॉजिस्टिक्स का एक सेटअप चाहिए होगा. और टेम्पल हैड दैट पर्टिकुलर रूम्स इन दैट वे, दो दैट वर नॉट डेवलप द वे इट वॉज डेवलप फॉर ऑल द गेस्ट, बट येस इट वॉज विथ ऑल द बेसिक फैसिलिटीज. वी हैड टू प्लान separate logistics and hospitality for that 571 people, which was our team, to take care of the entire wedding. That's the wedding that even when I'm talking, I don't know if it comes back, to do it again or to do it in a different way in the same place. I don't know how I will plan. And this was in 2018. 2018. Yep. So do you think that billionaires' wedding differ from a normal luxury wedding? Is there a point, I mean, is there a thing that they invest a good amount of money or their mindset is totally different? What's your point in that?
the mindset is basically many a things. It's the PR activity, Okay. public relation activity. When you talk about billionaires, it is that way. But अगर शादी देखा जाए तो it's happiness. Happiness का आपकी भी शादी होगी, हमारे यहाँ भी किसी के बेटे बेटी की शादी होगी, तो उस हिसाब से होगी. Billionaires की उस हिसाब से होगी. Happiness quotient remain the same. People are happy what they do. That's the ultimate goal that we as an event planner have in mind when we do their wedding. Yes, of course, there are many other parameters. ये एक दो दिन चलती है, नंबर ऑफ गेस्ट कम होते हैं, वो बड़ी होती है, ज़्यादा लोग होते हैं, डेस्टिनेशन होता है, वर्ल्ड लेवल के क्यूजीन्स होते हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, फॉरगेट बॉलीवुड, इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते हैं, बिलियनर्स वेडिंग, you know how it happens, no? So there are different things, different parameters that they both think when we Correct. talk a billionaire or a normal person. But yes, happiness quotient is what we want to achieve when we do a smaller one or when we do a big fat wedding. So वो achieve करने के लिए we die to achieve that. That is the thing that we makes us more happier. बाकी तो money is by product. वो कोई भी business होगा, कोई भी services होगी, वो तो होता ही रहेगा और आता ही रहेगा और सर्कल चलता ही रहेगा. एक अमाउंट की हो या XYZ अमाउंट की हो, हैप्पीनेस क्वोशेंट रिमेन द सेम. दैट्स द टेक अवे दैट वी एज एन इवेंट प्लानर टेक. So, what were your major takeaways from a very big fat wedding which India saw of India's richest personality, Mukesh Ambani's son? So, from an event planning vertical, what were some key takeaways which you noticed that ये चीज़ I don't feel अभी के इवेंट वाले करते हैं जो वो लोग ने की थी, and it became a such big global hype? Or was it a PR stunt? This was no, not at all PR stunt. That's their way of life. Correct. So you reflect way of life, the kind of guest list, the kind of friends they have. It has to be that way. It was the unique one. Never happened, talked about in the worldwide. And many of our colleagues, many of our friends involved there. They share their stories. Many events happen. So it's a boost to the industry and it's a welcome step, and we welcome it with open arms. We want more and more this kind of wedding happening, and at the end of the day, even it boost up the economy of the country. So it's a huge business. So down the line, you will see to it that many industry, F&B, decor, artist, jewelries, clothing. So when all put together, it's a huge industry. ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत ऐसी शादियाँ हो, लोग अच्छे से स्पेंड करें. Why not? इंडस्ट्री की बात है ना, and it gives boom to the economy. कौन ये जो the kind of artist came in, the kind of guest came in, ये लोग कहाँ इंडिया है? तो आए ना इंडिया, तो बात तो इंडिया की हुई ना डाउन द लाइन. तो और लोग आए, और लोग ऐसी शादियाँ करें, तो अच्छी बात है. And everybody is welcome to this. Whoever can spend that big, whoever, करना ही चाहिए. So, was there a point in your industry when you thought that ये event नहीं हो पाएगा मेरे से? I'll not, apart from the temple event, that ये मैं नहीं कर पाऊँगा. It's very tough for me. मेरी bandwidth नहीं है, but still you did it. And then वो चीज़ याद रहेगी that last minute तक वो it was like seesaw that पूरा heartbeat ऊपर है, but then it finally accomplished it and it was a boom. So what was that? Many a times we face this. Every year we face this. Every year we face this kind of thing. That's how you challenge yourself. Correct. तो रूटीन काम आपने कर लिया, आप 1999 से कर रहे हो, तो एवरी ईयर जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ग्रोथ की तो बात ही नहीं कर रहे. योर मेंटल ग्रोथ, योर स्ट्रेंथ, so there is a book called What Get You Here Won't Get You There. What get you here won't get you there. तो आप जो कर चुके हो, वही चीज से आप आगे नहीं बढ़ सकते, वही चीज करते रहोगे. ये जो आउट ऑफ द बॉक्स की बात है ना, वहाँ उस टाइप की बात है कि आप हर रोज यही काम करते हो, तो यही हो रहा है. व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ इट, व्हेन यू डू समथिंग डिफरेंट, एट दैट टाइम यू विल ग्रो. ग्रोथ बिकम स्टेगनेंट इफ यू डू द सेम थिंग. रूटीन जॉब करते हो अगर सुबह 10 से शाम को 5 बजे की, तो ग्रोथ गेट स्टेगनेंट. तो
हैव टू कम आउट विद न्यू आइडियाज, यू हैव टू डू एक्ट डिफरेंटली. हमारा फील्ड बहुत ही स्कोप देता है ये सब चीज़ों का. Very diversified, I guess. Very diversified. So every year, every guest has a different Q&A, Perspective. every perspective, demand, likings. The venues are different, the cuisines are different. Every day it's a new game. ये हर रोज चलता है. तो ये फाइट तो हर रोज चलती है. तो आई कैन नॉट पॉइंट आउट ऑन कि ये इवेंट पे हुआ, बट हाँ काफ़ी सारे जितने भी लैंडमार्क्स इवेंट किए उसमें एक बार तो यही आया कि ये कहाँ ले लिया. ये शांति की जीवन चल रहा था तो ये क्यों ले लिया पग्गा मेरे. यू नो, बी इट larger than life concert or this kind of big wedding, or you can say that a big corporate event. Recently, we got a phone call day before yesterday to fly to Gorakhpur and do an event on this 17th, wherein the CM Sir Yogi Adityanath is coming in. So the team just went off. They 5 बजे कॉल आया, कल सुबह की फ्लाइट पकड़ के गोरखपुर से. अब जब और वो टीम लीड वो कर रहा है जिनका खुद का बर्थडे है 13 को. सो एवरी डे देयर इज न्यू चैलेंज. तो घर से निकल के बर्थडे के दिन भाग गए. तो यहाँ पे तो ये लाइन पे यू हैव टू हैव दैट 365 scheduling, I guess. अरे शेड्यूलिंग का हमको तो पूछते हैं लोग कि आपको छुट्टियाँ होती है. तो मैं तो बोलता हूँ स्मशान जिस दिन बंद होता है उस दिन हमारे यहाँ छुट्टी होती है. ये इवेंट तो कभी भी आती है. एज आई टोल्ड यू, ये एकदम से आया तो टीम हैज़ टू कॉप अप, द वन हैज़ टू गो. एक भाई साहब छुट्टी पे थे, वो आज की फ्लाइट में पहुँचे क्योंकि ये ऐसे नहीं होने वाला इवेंट. So, and this team are with me since 17 years, 18 years, and the leader is with me since 24 years. तो वो एकदम से भागे. बर्थडे है, सुबह फ्लाइट लेके भाग रहे. कोई भी प्लान हो खुद का वो भी निकल जाता है. ये तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ. ये चैलेंजेस एवरीडे आते रहते हैं. तो बट वी लव इट. ये नहीं आएंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा. तो डिफरेंट यू, डिफरेंट डे will get you everything. But you have that same consistency and same desperation that कुछ भी होगा I'll do it. ये बुक तो होनी चाहिए. ये बुक कोई भी फील्ड में हो. मैं तो बोलो कोई भी फील्ड में हो. आज अब जैसे बात कर रहे थे, हमारे कैमरा भाई साहब के पैर में अभी एक्सीडेंट हुआ और लगा है, but then too he is here. Yes. So Parth, thanks for coming in. Otherwise तो ये पूरा कैंसिल हो जाता. When you talk about a competitive world, what do you mean by that? You cannot be the same. You cannot be just like another one. You have to do things differently. What's the differentiational factor which you are giving? Yeah, So that's the main bread and butter. Yeah, I but think. what's the difference you will give? तो आज आप भी वो पार्थ रहता तो बेहतर होता. अगर कोई और आ गया इनके जगह पे It तो won't you happen. always think that way. तो ये अपने आप में खुद की डिमांड क्रिएट की. So when you create your own demand, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. कोई भी फील्ड हो. Why only event management? कोई भी Any field. Any field. And this is one of the most, interesting question which I had when we were making the whole questionnaire. Did pandemic affect the whole event industry? Oof, of course, yes. Was there a sustainable point for some to be, event planners who just started and pandemic happened and they just had to shut it down? No, they did shut it down, and many of them have come to us. Many of them have, we had moral boosting sessions and everything. Even we required. It's not that if I say that तो रात भर नींद नहीं आती थी. And if you can see I have developed dark circles over here. So that's the pandemic has given me to that. आज तक वो नहीं निकल पा रहे. तो yes, of course, but we all happily came out of it. And since we had a bad couple of years, not that particular year. So 2020, 2021, 2022, and then it started. So still people had that, fear that 2 साल तो निकल गए, but still अगर मैं इतना बड़ा करूँगा, if anything happens then what? ये तो आ गया ना, fear तो आ गया ना. तो हमारे लिए So extract करना आपके लिए बहुत difficult होगा at that moment. हमारी टीम और हमारे आजू बाजू के लोग के लिए ये अच्छी बात थी कि हमसे बात हुई. उन्होंने बोला भाई हमने बैंक स्कैम देख लिए, हमने अर्थक्वेक देख लिया. 6 महीने इंडस्ट्री में एक पत्ता नहीं हिला था और उस टाइम को इंडस्ट्री वर्ड ही नहीं था. तो अब तो हम सब साथ में हम वी आर हियर टू कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, गले लग सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना दुख शेयर कर सकते हैं. वहाँ पे उस टाइम पे तो मतलब कोई था ही नहीं बात करने को. क्या करेंगे, कोई इवेंट ही नहीं हो रहा. यस, इवन आई गेट एट दैट टाइम आई वाज मोर डिप्रेस्ड क्योंकि एक छोटा सा नेट प्रैक्टिस हो गया उधर अर्थक्वेक के टाइम पे. At that time, the phone was 8 rupees and 4 rupees. 4 rupees incoming call for a minute and 8 rupees outgoing call for a minute. तो ये हो गया उस टाइम पे. तो फ़ोन छोड़ दिया था मैंने 8 महीने तक.
मैंने फ़ोन हाथ में नहीं लिया था। राइट्स जब हुए 4-6 महीने तक इवेंट का शब्द ही नहीं था। जब राइट्स हुए उसके 5 दिन बाद मेरे यहाँ इवेंट होना था एंड द गेस्ट लिस्ट में वी हैड रवीना टंडन एंड शेखर सुमन कमिंग इन, वो कैंसिल हो गए। वो इवेंट होता तो वही फिगर वाली बात थी और मैंने एक छोटा सा घर लिया था, मैं पूरी लोन उससे उतार देता, इतना कमाई था उसमें, एंड दैट गॉट कैंसिल। तो 2002 में जो देखा था वो हमने शेयर किया अभी के यंगस्टरों के साथ में एंड एक दूसरे को सहारा दिया एंड वी सेल इट, वी सेल द स्टॉर्म एंड वी आर गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड वी आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डाउन द लाइन। एंड अभी कुछ ऐसा आ जाएगा तो हमें पता है हमें क्या करना है और वी जस्ट हैव टू होल्ड बैक and the time will pass. There's a thought which many people are just depicting to that, is that the entrepreneur is not judged by the success which he is achieving. He's judged by the backlogs or the failures which he is accomplishing. That's the main thing. If you would be in that thing, I wouldn't think you'll be on the show at the moment, because yes, of course, right? yes. तो मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, स्पोर्ट्स इंसिडेंट है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है उन्होंने उनका नाम कर दिया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ऐसा बुलाते थे। जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेलते हैं वो वर्ल्ड में कोई नहीं खेलता, एट द टाइम ऑफ रिकी पॉन्टिंग एंड स्टीव वॉग एंड ऑल देयर, उसको कोई नहीं हरा पाता था। 6 साल तक हारे ही नहीं, कभी वर्ल्ड कप में वो फाइनल में ही होंगे, वही होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया वाज डोमिनेटिंग इट। क्यों? आई एम कमिंग टू योर पॉइंट। वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में इफ सचिन तेंदुलकर है वो बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया ना, तो ही वुड हैव had much more tougher time in getting into the team than that what he had it in India. Reason being, ऑस्ट्रेलियन सिलेक्शन उस बेस पे होता है क्रिकेट टीम का, जब छोटे हो, जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हो, आप काउंटी क्रिकेट खेलते हो, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हो, आप फेलियर होके वापस बाउंस बैक कितनी बार हुए, उसके बेस पे उसका सिलेक्शन होता था। ओके, सो ये तो एक यूनिकनेस है। अगर आपने ये देखा है तो यू आर मोर स्ट्रोंगर फॉर एंड यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। वो जब स्ट्रॉन्ग आएगा आप इतना हिट नहीं कर पाएगा आपको। तो दैट्स द की थिंग। आप जितना फेलियर देखोगे और बाउंस बैक हो गए, ऋषभ पंत he bounced back एंड द वे ही बाउंस बैक, इतना बाउंस बैक हुआ कि अभी इंग्लैंड की टीम पे जब उनको बोला गया कि ही कैन नॉट विकेट कीपरिंग उससे नहीं हो पाएगी, नहीं कर पाएगा क्योंकि उनको पैर में लगा हुआ है, बट दैट टू इज रिक्वायरमेंट एज ए बैट्समैन। इतना रिक्वायरमेंट। आप 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ है, आप 2 साल, पौने 2 साल आप फील्ड पे नहीं आए हो। ये जो किलर इंस्टिंक्ट होता है ना, द काइंड ऑफ किलर इंस्टिंक्ट द स्पोर्ट्समैन हैज, if we drive that, एवरीवन एवरी फील्ड, इफ दैट इज द थिंग नो, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और फेलियर्स ज्यादा देख लिए ना तो फिर तो आपका सक्सेस होना पंगा। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर रहे, यू आर वेरी मच पॉजिटिव, आप डिसिप्लिन हो, ये सब चीज़ें बेसिक जब साथ में ले आ गई ना तो कोई नहीं रोक पाए। I feel when you are in your success period, keep your head down and work, and when you are in your period when you think that people are losing trust in us, then also look down and work. If you are having that same thing at most, then you will obviously succeed, because वो दोनों चीज को कंसिस्टेंसी पेस, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आप जो भी काम करो शिद्दत से कर रहे हो, करूँगा, यू आर नॉट वरीड अबाउट आगे पीछे क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, डाउन द लाइन नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उसके ऊपर काम करके फिर से ले रहे हो। कोई कुछ भी बोल रहा है बट आप शिद्दत से उसके पीछे लगे हुए हो, तो कोई पूरी कायनात, शाहरुख खान वाला डायलॉग याद आ जाता है, पीछे पड़ जाती है आपको वो चीज़ सक्सेस दिलवाने में। And what do you think are the unsung heroes of your industry, basically? See, event mein you are also, pointing that it's not I, it's we, right? If it's we, then without we, you're not at this position. And who are that main unsung heroes which are playing the main game inside the field and you are leading them, right? So if you could, name the people or the vertical on which they'll be doing it, without them, it's not even possible. And how does it take? I mean, for example, if I book an event with you, right? What's the process or what's the hierarchy which, the things get followed from an event side? कैसे वो सब चीज़ manage होती है and then you guys execute it? So what's the main thing? I guess there are two different questions. Yeah. One is the kind of people who who all are there that drives it. तो हम जब यहाँ पे आए तो जो भाई साहब ने हमको कॉफ़ी पिलाई, दिस द की पर्सन। वो कॉफ़ी अच्छी नहीं होती तो आज और मैं शायद, आप और मैं शायद वो मूड में नहीं बैठते जो आज बैठे हैं। People who work at the baseline, particularly in our industry, the laborers who create the setups, who does all the floral works, picks up heavy lights,
heavy sounds, put-ups at that place, work day and hard. So there are setups which have taken a month for the 3 to 4 hours of event. It takes months to erect it. They are the backbone. If they are not there, this industry would not survive. Full marks to them. They have bloods, they have sweats, they have had a very bad incidents. I remember that one of the electrician died on the day before the event. That was the saddest part. बट हमारे इंडस्ट्री में बोलते हैं ना, जो राज कपूर साहब बोलेंगे, शो मस्ट गो ऑन. हमने शो कर दिया, बट दैट्स द सैडेस्ट पार्ट. वो चला गया, इवेंट चल रही है. दे आर द पीपल ऑन द बेस लाइन, ऑल द लेबरर्स, ऑल द venue construction people, all the florists, all the one who takes care of the transportation, all the one who takes care of the execution. And again I say, एक दिन 2 दिन 4 दिन वाले सेटअप की बात नहीं करो, महीनों तक, just for that 4 hours 5 hours of event. They are the actual one जिनके कारण इंडस्ट्री चलती है. फुल मार्क्स, फुल क्रेडिट टू देम. हमने तो बात कर ली, हमने तो आइडियाज दे दिए, एग्जीक्यूशन प्लान भी दे दिया. Then comes what? Then they are the people. फुल मार्क्स टू देम, फुल क्रेडिट हुए. उनके बगैर ये तो आइडियाज तो कोई भी दे देगा. एग्जीक्यूशन इज द की थिंग. एग्जीक्यूशन राइट है तो ये. एंड हु डज एग्जीक्यूशन? द बेस लाइन वर्कर्स. So they are the people. I give them full credit and full marks to them. And where do you see the event industry after 10 years? Do you think that AI will, dominate something in event, or it's not? Event has to deal with human emotions. AI में तो है ही नहीं ये बात. Event has to deal with the kind of the experience that you give to your guest, be it a wedding or be it a corporate event, be it a government event or whatever it may be. They are the organizer, they are the guest. There are two kind of things. The amalgamation and the event has got created. AI में ये कहाँ possible है? No human touch. कोई है ही नहीं इसकी बात. तो जितना AI ज़्यादा देगा, आप कहाँ जाओगे? ये AI ने आपको सब दे रहा है. कॉफ़ी ऑटोमेशन पे दे दिया आपको, घर पे काम भी ऑटोमेशन पे हो गया, आपका खाना भी ऑटोमेशन में आके बन गया. बट इंट्रैक्शन इज ह्यूमन टू ह्यूमन, इज विद द इमोशंस. पार्टी करने क्या करोगे? रोबोट के साथ पार्टी करोगे? कहाँ पार्टी करोगे आप समझ रहे हो? ठीक है, वो म्यूजिक बजा देगा, आपको पता है ना ये रोबोट है, तो फिर नहीं करोगे ना. फिर तो फिर अपने आप में इवेंट्स तो होना ही है. पैरेलल इट विल ग्रो. 10 साल बाद AI के साथ में करेंगे. वही बता रहा हूँ, म्यूजिक बजा लेगा कोई. हाँ, जॉब बहुत सारी जा सकती है. जो चीज़ एक इंसान कर सकता है वो रिप्लेसेबल है विद द हेल्प ऑफ द AI. जैसे कंटेंट राइटिंग. अब कंटेंट राइटिंग कितना भी कर लोगे, ChatGPT विल रिप्लेस इट. दूसरा ये भी आ गया है कि आप आर्टिस्ट हो. अब जो पेंटिंग करते थे, वो पेंटिंग को आपको 2-3 साल लग गए पेंटिंग बनाने. वही चीज़ 20 सेकंड 20 मिनट में तैयार हो जाती है विद द हेल्प ऑफ AI. अरिजीत का लेटेस्ट गाना किशोर कुमार की आवाज़ में आपको दिया जाता है. करेक्ट. ये सब चीज़ें हो रही है. तो वी आर ट्राइंग टू यू मी ऑल पुट टुगेदर आर ट्राइंग टू कॉप अप विद दैट एंड वेलकमिंग है, काफ़ी वेलकमिंग है. और काफ़ी सारी चीज़ें जिसके पीछे एक सोच बनानी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी. वी हेड टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन एंड नॉट टूवर्ड्स समथिंग दैट वी आर ऑल अ फियरफुल. तो डरने की बात नहीं है, बट यस, कॉप अप करना पड़ेगा एंड रेडी होना पड़ेगा. Alignment इवेंट तो चलेगा. Alignment is the इवेंट तो चलेगा. best thing which you have to do. And Rajesh sir, if you had unlimited resources, unlimited budget, and any location which you can choose, wherever you think, what was that? How could you plan that event? I mean, you had everything. जो चाहिए वो मिलेगा आपको. Then what would be your dream project in that? You just explain me, so I'll just go in there and I'll think that. नहीं, मैं तो रूटेड हो जाऊंगा उस टाइप पे पहले तो. अब चलो ठीक है, 2-4-5 दिन के लिए इंडिया के बाहर घूमने जा रहा है तो आप घूम लो, बट आप इंडिया में ही करो शादी पहले तो. अच्छा, ये मैं बोलूँगा, क्योंकि माई टीम फाइट्स विद मी. सो वी हैड वन क्लाइंट हु वांटेड टू डू इंटरनेशनल वेडिंग, और मैंने उसको बोला कि आप इंडिया में करो. इवेंचुअली वी डिड इट इन इंडिया. ये जितना इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अगर हम कि इकोनॉमी चलेगी, ये चलेगी, तो व्हाई नॉट डू इट इन इंडिया. आप जाओ ना, घूमने जाओ ना, ऐसा नहीं. इवन आई रोम अराउंड द वर्ल्ड, तो घूमने जाओ, अच्छी बात है. बट वो 500-600 लोग को, 200-300 लोगों को लेके वहाँ पे जाके शादी करने का एक प्रैक्टिकलिटी भी मेरे को खुद को इससे कन्विंस नहीं है. क्योंकि वहाँ पे द काइंड ऑफ डीजे, आपको महाराज तो इधर से ही लेके जाना पड़ेगा. वीडियो फोटोग्राफर में अगर बात करता हूँ कि वो मम्मी पापा के ज़माने के वीडियो फोटोग्राफर को उनको ही लेके जाना है. उनसे ही मेरे बेटे बेटी की शादी होते तो उनके लिए भी टिकटें खर्चो, इनके लिए भी करो. तो वो सब चीज़ें कहाँ उनको घुमाना है आपको. तो
और बिगेस्ट पॉइंट विच आई सी इन ए डेस्टिनेशन वेडिंग होता क्या है, आप जाते हो, चेक इन होते हो और चेकआउट होते हो होटल में। आप करते क्या हो फिर? ना तो आप सिटी में कहीं घुमाने के लिए लेके जाते हो, ना कंट्री दिखाते हो। आप डेस्टिनेशन वेडिंग में अगर आप गेस्ट होके गए हो कहीं पे, इवन इफ यू गॉन फॉर ए स्मॉलर डेस्टिनेशन वेडिंग यार नियर बाई उदयपुर में, तो आप गए जिस दिन, आपने होटल में चेक इन किया, 48 आवर्स 72 आवर्स सारे रिचुअल, सारे पार्टी, सारे सेलिब्रेशन खत्म करके आप वापस घर आए। उदयपुर तो घूमे ही नहीं ना आप। तो ये कंट्री का जो कंसेप्ट है, अगर आप उसको लेके यहाँ से, इंडिया से लेके कोई कंट्री में लेके जाते हो, कंट्री तो दिखाई नहीं रहे हो, एक होटल ही तो दिखा रहे हो। तो यहाँ के होटल, फिर खाने के प्रॉब्लम। आपको खाना तो इंडियन वाला ही चाहिए, वही दाल रोटी और दाल मखनी और रोटी, तो वही आपको चाहिए। फिर वहाँ के शेफ को बोल के दाल मखनी बनाओगे, कैसी बनेगी? वहाँ पे स्वीट की बात करोगे, वो डेजर्ट्स की बात करेंगे। इंटरनेशनल शेफ, इंडियन शेफ वहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे आपको। फिर उनसे जो मिठाई बनेगी, वो यहाँ पे जो हलवाई ये बनाते हैं वो थोड़ी बनने वाली है। देयर इज अ डिफरेंस इन इंग्रेडिएंट्स। तो एक बेसिक का वो हो जाता है। तो पहले तो ये इंडिया में होगा, जो भी होगा कितना भी बड़ा होगा, ये एक ये इंडिया में होगा। हाँ, ओके डन। एंड कभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन किसी ने मुझे पूछा लिए तो ऑल ऑफ अ सडन तो because That's the reason, yeah, we no, want who real Rajesh sir is, right? We want to make sleepless ideas, फिर मैं ऐसा ही कुछ जो टेम्पल वेडिंग हमने किया, बीच साइड और पैलेसियल और टेम्पल 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 दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग वन, बीच साइड अब हो जाता है। ओके एवरी इवेंट, एवरी वेडिंग इज अ चैलेंजिंग वन, क्योंकि एवरी न्यू डे, वो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने जाता है ना, तो इट इज़ एन एक्सपेक्टेशन वो 100 मार के ही आए। होता कितना है वो अलग बात है, बट ये उससे भी टफ है, क्योंकि वो 0 पे आउट होगा, उसको दूसरा दिन मिलेगा। हमें तो चांस ही नहीं है दूसरा, हमें तो 100 मारनी ही है। एवरी डे व्हेन वी गो आउट, लाइट टाइम पे चालू होनी चाहिए, साउंड टाइम पे चालू होना चाहिए, आर्टिस्ट टाइम पे हाजिर होना चाहिए, खाना बढ़िया होना चाहिए, सब स्माइलिंग फेस होने चाहिए। ये है ही, ये फील्ड ही ऐसा है। इवेंट इज बंच ऑफ थिंग्स। अगर 5 थिंग्स एक साथ आप कंपेयर कर रहे हो, तो एक बंद होगा, देन इवेंट वुड बी टोटली इन दैट डिटोरिएटिंग वे। तो यहाँ पे to manage that all 5 together, and after integrating each and every 5, then it creates a better thing. तो ये तो एवरी डे इन एंड आउट है। तो पैलेसियल वेडिंग एंड ये सब चीज़ें जो होती है उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होते। टेम्पल वेडिंग में मैं बोलता हूँ कि वो आप तम्बाकू खा के आपका कारीगर काम नहीं कर सकता। अच्छा, ऑब्वियसली आप टेम्पल के अंदर थोड़ी तम्बाकू खाओगे, सिगरेट थोड़ी पियोगे, वहाँ पे अलाउड ही नहीं है। और कारीगर लोग होते हैं, उनको किक उनसे ही मिलता है, तो कैसे होगा? मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, 200 लोग काम कर रहे थे टेम्पल के अंदर, एंड वी हैड दिस प्रॉब्लम। आई हैड टू बाउ डाउन माई हेड एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्वामी जी, गलती हो गई इंसान से, आपकी संगत में रहेंगे तो भी सुधरेंगे। ऐसा कर करके वो निकाला है वेडिंग, जो मोस्ट डिफिकल्ट वन। तो ऐसा ही कुछ चैलेंजिंग लेंगे। Second one is done. Okay. Yeah. Temple wedding, right? Yeah, temple wedding. First is in India, second is in temple. Yes. And the cost तो फिर मायने नहीं रखते। कॉस्ट आप अगर बोलते हो तो नो, many a times we are very factual and honest with ourselves. तो हम लोग तो even we had a thumb rule in my कि XYZ अपना एक परसेंटेज सेट है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट करना इज ऑल्सो क्राइम। तभी लॉन्ग टर्म में चलता है वो। तो ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट बोल दे कि यही बजट, वो ऐसा नहीं होता। आपको जो चाहिए वो हम दे देंगे, तो जरूरी नहीं है कि वही बजट करना। आर्टिस्ट चाहिए, 3 घंटे का आर्टिस्ट चाहिए, योर एवरी गेस्ट एंड योरसेल्फ आर सेटिस्फाइड विद दिस, तो फॉर द नेम सेक आप एक बड़ा आर्टिस्ट लेके आओगे, वो बात नहीं होनी चाहिए। इट शुड फिट टू योर वेडिंग। सो रादर देन गेटिंग इनटू दैट बिग मनी, आई वुड गेट इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एमलगमेशन ऑफ ऑल दिस सर्विसेज, एंड वो पूरी थाली अच्छी होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि एक मिठाई अच्छी है तो ये अच्छा करके दे देंगे। अब ये कॉस्ट XYZ अमाउंट पे हो रहा है, तो आप उसको XYZ प्लस करके बोले, जरूरत नहीं है। दैट्स द रीजन इंटरनेशनल वेडिंग के 5 रीजन दिए क्लाइंट को कि 600 लोग हैं आपके, उसमें से 200 लोग तो आपके पास उनके पासपोर्ट भी नहीं है, तो क्या ट्रैवल एजेंसी थोड़ी खोलनी है यहाँ पे? तो व्हाई यू वांट टू डू एन इंटरनेशनल वेडिंग, ये भी समझाया जाता है। सो दैट कम्स, ऑफ कोर्स दैट कम्स इन अ बिग वे, बट दैट कम्स लास्ट। फिट क्या होता है एक इवेंट के अंदर, वो ज़्यादा मायने रखता है। The ideation, the kind of experience, the kind of newness, the way you present it differently, ये सब चीज हो जाए तो एक होता है ना, 100 में से 100 मार्क आएंगे, 100 में से 101 मार्क नहीं आएंगे, तो ज़्यादा स्पेंड करने से ज़्यादा मार्क कहाँ आने वाला है इसमें? ऐसा ज़रूरी नहीं है। दैट येस, ऑफ कोर्स द अमाउंट इज हैज़ टू बी गुड, इवेंट हैज़ टू बी 360 डिग्री गागा,
एंड दैट्स द गिवन केस, राइट? बट वो क्या हो सकता है वो नहीं डिसाइड हो सकता है. इट रिक्वायर्स मैनी पैरामीटर्स. दूल्हे को क्या चाहिए, दुल्हन को क्या चाहिए, मम्मी को क्या चाहिए, पापा को क्या चाहिए, गेस्ट जो आ रहे हैं वो किस टाइप के एक्सपीरियंस है. ऑलरेडी 50 शादियों में ये सब जो हो चुका है तो इनको डिफरेंट हो. So you also search for that. वी हैव टू ये टेम्पल वेडिंग किया तो नहीं, कितना so, रिसर्च करना For पड़ेगा. example, if I'm having a good destinational wedding, I'm having the guests who are on a very good high credibility. वो लोग ने वो सब events पहले ही already किए. I mean, they have visited there because people have invited them. So if I'm also inviting them on someone's wedding, so you also check that वो गेस्ट ने वो एक्सपेक्ट किया है तो हम उसको उनसे बेटर कैसे दे पाएंगे. एग्जैक्टली वो गेस्ट लिस्ट होता है. वो गेस्ट लिस्ट में हम पूछते हैं कि आपके सर्कल में जो आ रहे हैं उसमें से कितने लोग डेस्टिनेशन गए होंगे. तो ऑलमोस्ट एवरीवन. ओके, ग्रेट. तो यही तो रीजन होता है. दैट्स हाउ वी चेंज फ्रॉम उदयपुर टू गोवा और गोवा टू जयपुर, जयपुर टू उदयपुर. सिटी भी चेंज होता है, होटल भी सिलेक्शन जो होता है, आईटीसी हो गया, मेरिट हो गया तो ताज ले लो. ये बहुत सारे पे. आपके लोगों ने क्या देखा है, वो किस टाइप के लोग आ रहे हैं. जो आप पहली बार करें उसको कोई टेंशन अभी नहीं. ताज ही दिखा रहे हो दूसरी बार और पहली बार भी ताज दिखा रहे हो, देन इट वोंट क्रिएट दैट सेटिस्फैक्शन. हाँ, तो एक व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल, व्हाट इज द डिफरेंट लेवल. न्यूनेस क्वेश्चन भी तो होना चाहिए ना उसके अंदर. तो गेस्ट लिस्ट के अंदर देखना पड़ता है. करेक्ट. टेम्पल वेडिंग के अंदर क्यों एयर कंडीशंस क्रिएट करने पड़े. सबको मालूम है टेम्पल वेडिंग है, धर्मशाला के अंदर ही रहना है, ये भी मालूम है. कंफर्ट लेवल ज्यादा प्यारा है अपने आप में, फैमिली के अगेंस्ट में तो नहीं आते कोई भी बहाना करके. बट दैन टू दैट बेसिक फैसिलिटीज वॉज क्रिएटेड बिकॉज जो होस्ट होता है उसको भी तो होता है कि मैं ये चीज़ें करूँ. 3 दिन के इवेंट है तो डिफरेंट ऑर्नामेंट्स पहन रहे हैं तो लॉकर भी चाहिए, तो लॉकर भी दिया गया. एवरीथिंग. अमाउंट इज नॉट दैट, ऑफ कोर्स इट विल कम इन पिक्चर, बट वो अमाउंट के लिए हिसाब से वो नहीं नक्की होगा. रिक्वायरमेंट, लाइकिंग, वॉन्ट्स, डिजायर, ट्रेंड्स, ये सब सेट करने के बाद अमाउंट सेट. ऑल 5 शुड बी पूरी थाली परोसनी है. करेक्ट. ये फरसान अच्छा है, मिठाई अच्छी है, चल गया ऐसा नहीं है. दाल भी अच्छी होनी चाहिए. So that was a very great and insightful conversation which we had with you, Rajesh sir, and a very raw and real conviction. I mean, you know, everything from a event manager's or event planner's mind. And as you're pioneering in Gujarat from from more than 25 years, we knew each and everything that ye hai, and you discussed everything. So it was a very insightful conversation. And how did you find our platform? How do you find the platform of podcast basically that? Dhruvish, I tell you, I'm a teacher. I basically want youth to have more and more of experience. उसमें कोई भी नई चीज़ होती है वहाँ पे मुझे करने की इच्छा होती है. अगर youth is involved and they get different kind of experience. कुछ भी हो, experience करो. Life is full of experiences. Just go through it. This is one of the kind which is trending nowadays. Or if I am able to touch anyone's life, including you being a youth, I'll be the most happy person. ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. तो जब आपने भी मुझे बोला ना, मैंने आपने मुझे दिया ना पॉडकास्ट करना है और ये चैनल है मेरी करके जो मुझे दिया आपने, तो आई वाज लाइक सब्सक्राइबर कितने नहीं देखा मैंने. ट्रस्ट मी, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुंचना चाहिए. चाहे 2 हो, 20 हो, 20,000 हो, 2 लाख हो, 20 लाख हो. तो ये एक आप जो कर रहे हो एकदम सराहनीय है. कीप डूइंग इट. And I will make it a point that I'll help you in a way that you get good kind of people and ये सब अच्छा हो जाए. तो करते रहो, ज़रूरी है. आप दिन में या महीनों में, साल में कितने लोगों से मिल पाओगे. तो ये जो माध्यम है उससे आप कनेक्ट कर पाते हो, उससे आप एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ और एक्सपीरियंसेस शेयर लोगों के वो आप देख पाते हो, सुन पाते हो. और उससे अगर कहीं का किसी का भी भला अच्छा हो जाता है तो नथिंग लाइक इट. Keep doing it. And I hope so happy for you. Likewise, and thank you so much. Pleasure, sir. And I hope that to be event planners जिसको ये इंडस्ट्री में भी जाना है, उनको भी ये पॉडकास्ट से एक insightful वो भी educate हो. So our main motto is just to educate people and have some raw conviction which is real from a people who've experienced it and they have pioneered in it. So ये सब तो हो गया some serious sort of questions. Now let's go with a rapid fire round. Right? It's a very good fun segment of our podcast where we find who real Rajesh sir is and one word basically, right? I never played this game. Yeah, that's the reason why family में भी ये सब कहते हैं क्या होता है, ये सब लेके आप इवेंट करते हो तो you find that वो गेस्ट ने कौन से लोकेशन देखे. So we also do that same thing that आपने वो क्वेश्चन क्यों नहीं आंसर की है. So let's start
with the first question. One event you wish you could have ever planned. An international concert, an artist from international level, here in Ahmedabad. And if hypothetical hai to, in my hometown, Jamnagar. The most underrated quality you find in an entrepreneur. Youth जो दिखता है ना, this is discipline. Discipline. Yep. ये अंडररेटेड है. डिसिप्लिन के बगैर कोई एंटरप्रेन्योर आगे नहीं बढ़ा होगा. एंड ये अंडररेटेड है. इवन माई किड्स डजंट वांट मी टू यूज दिस वर्ड अगेन एंड अगेन. सो आई वांटेड टू हैमर इट अगेन एंड अगेन. विद दिस डिसिप्लिन यू कैन गेट एनीथिंग. आप डिसिप्लिन में कुछ भी ले लो. आप टाइम मैनेजमेंट ले लो, आप पंक्चुअलिटी ले लो, आप कंसिस्टेंसी ले लो. इट्स ऑल फॉल्स इन वन वर्ड. So discipline is a word which is, I feel it's underrated. It should be highlighted worldwide to each and every youth. डालना पड़ेगा दिमाग में. The biggest misconception people have of your industry. It's a glamour word. बहुत सारा पैसा है. नहीं उतना पैसा. नहीं, it's not about that पैसा है glamour word. It's a byproduct. वो है. But ये तो myth है. ये कितना tedious है. 365 दिन काम करना पड़ता है. रात भर जागना पड़ता है. कोई खाने को पूछने वाला नहीं होता है यार. 2 दिन 3 दिन आप हो, nobody will come and ask you आपने खाना खाया. आप घर पे नहीं जा सकते. मैं अहमदाबाद में होते हुए मैं 2 दिन 3 दिन घर नहीं गया हूँ. अपने अहमदाबाद में इवेंट है, अहमदाबाद में ही घर है, तो भी घर नहीं पाया. If you could ever had a dinner with any 3 people, living or dead, who would they be? The tough one, the toughest one. Living Jackie Chan. Jackie Chan. Yeah. 2 more. Dead Michael Jackson. Okay. And what was the third one? The third one. Any person. I mean, Any person. living, dead, or anyone. Top 3 people you Living, want to have. dead. Yeah, living or dead. Mithun Chakravarti. Mithun Chakravarti. So all dancers, basically. Yeah, all dancers. Yeah, I was a dancer. So, and Jackie Chan is world class, disciplined person. I have एक बार जीवन में बस. And the final and the last question. Your favorite type of khichdi? The one which is made by my wife and my mother. And with khichdi and chash, right? Yes, of Together. course. Because Together, when we that's a met combo. for the first time, you told that's Yes, what yes. a combo is. Combo is. So thank you so much, Rajesh sir, for coming on our show. And it was a pleasure and a very good, insightful conversation which we had, and looking forward more into that. Thank you. Thank you, Duvish, for having Thank me here. Thank you very much.